और लोग भी ज्वाइन करेंगे क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। So I think we should start. So as we have discussed about the syllabus in the previous class, okay. So we'll starting the module 1, okay. So today we'll finish the module 1. Briefly we'll go, okay. I think all of you have these ideas, okay. Just I'll touch the topic and we'll go ahead, okay. Let's see how, if any doubt, anytime you can ask. Okay, so everybody has joined the basic electronics Google Classroom. Yes, sir. Okay. Yes, No, sir. Electrical वाले join नहीं हुए sir. So please join that group. Okay.
सर लिंक भेज दीजिएगा। Okay. Over there you have first assignment, and also after some time you'll put the second assignment. So all of you please start making your assignments, because आप ये topics, बहुत सारे topics तो cover कर ही चुके हो, will touch here also. Okay, because when कब वो exam ले लेंगे पता नहीं, ठीक है? So we'll very fast, ठीक है? Yes, sir. Okay, so in the first model we are, और कोई join करेगा कि start कर दे? चलो start करते हैं. Okay, so your first of all you mark your code that we have. The code of basic electronics subject is what? EC 301. Okay, you check your website, that means your university website, and you can download your syllabus over there, or else I will provide also. Okay, so it's better to check the university website regularly. Whatever notice is coming, carefully go ahead and make this is habit. Okay, आपको मेल चेक करते रहना चाहिए, वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए, ठीक है? For the notice. Okay, and be aware कब कहाँ से क्या नोटिस आ रहा है. जब आप अवेयर नहीं रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मिस हो जाएगा. Okay, so this is our code for basic electronics. Okay, so let us move ahead. So all of you know what is electronics? कौन बोलेगा? So flow of electrons in a semiconductor devices known as electronics. Okay, basically we are dealing what he said. Okay, we are, where is the draw button? So basically what electronics is, obviously it's a branch of science, okay, in which we are thoroughly going to study about how electron behaving in the semiconductor material and its characteristics, and using these what we are making as a device. Okay, as simple as that. ठीक है, इसी को हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है? So the components of electronic circuit, this is very very important, categorized in the two section. Okay, first one is जब आप कोई भी सर्किट खोलते हो, है ना, so different आप देखते हो डिवाइसेस लगे रहते हैं. Okay, वो सारा डिवाइस को टू कैटेगरीज में बांट दिया है. एक को बोलेंगे हम एक्टिव कंपोनेंट और दूसरे को बोलेंगे हम पैसिव कंपोनेंट. राइट? ओके, ठीक है. सो व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट देन? द कंपोनेंट is required energy of source or source of energy to perform their intended function or task. That is going to be fall in the active component. Okay, ठीक है. जैसे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से जितने भी डिवाइसेस बने हुए हैं is going to be fall in the active component. Okay, जैसे डायोड. Okay, अभी डायोड का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए I have to give some power to it, तब वो अपना काम करेगा. ओके, ठीक है. किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. सेम. दूसरा एग्जांपल है ट्रांजिस्टर, जेफेट, मॉसफेट. व्हाट आई सेड, the device is made with the semiconductor material is going to fall in the active component. Okay, and second is passive one. So the passive component or passive electronic components are those are not requiring any source of energy
to perform their intended task. Okay, they are not going to require, okay, a source of energy to perform their intended task. That is what, and that is what, these are the few electronics components, that is active component, है ना? कोई this is IC, these are the diodes, transistors, okay, MOSFETs, like this, okay. These are the active component. Passive component क्या बोले हम? And please mark your attendance. Someone should take screenshot and send to me in WhatsApp, okay, in the group. Okay, what was passive component? Bolo? Sir, which do not require any source to perform. External sources. Yes, sir. Sir, which do not require any external source. Right. That is the passive component. Okay. कहने का मतलब ये हुआ, अगर सिंपल में बोला जाए, ओके, तो जो उसका काम है उसको वो परफॉर्म करने के लिए उसको सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, लाइक रजिस्टर. ओके, रजिस्टर का काम क्या है? To resist current. To oppose the flow of current. To oppose the flow of current. So it doesn't require any source of energy to perform or to oppose that current. Okay, अभी जो भी करंट आएगा ये अपोज करेगा इसको. एक्सटर्नल ऐसा नहीं है कि इसमें बैटरी लगाएंगे तब ये अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा, राइट? क्लियर है ये बात? Naturally, resistor is going to oppose the flow of electricity. Okay, same like capacitor and inductor. Okay, so these are the few. सर बैटरी कौन सा कंपोनेंट है? सर बैटरी कौन सा कंपोनेंट है? बैटरी ऑब्वियसली पैसिव में आएगा. यस सर, थैंक यू. ओके, सर वो पैसिव कंपोनेंट में कैसे आएगा सर? वो तो खुद एक एक्टिव सोर्स है ना. कौन से? सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सोर्स. Here we are discussing about the components. So all the electronics, whatever you are seeing on the screen, is divided into the two section, active and passive. हम एक्टिव, अगर आपको बैटरी है सपोज, इसका काम क्या है पहले ये बताओ. करंट को फ्लो करवाना. बैटरी का काम, हाँ, स्टोर करना है ना चार्ज को एक तरह से. yes, फिर बाद में हम अगर उस पर हाँ, लोड पे लगाएंगे तो वो कंज्यूम हो जाएगा. ओके, यस सर. तो ये काम करने के लिए बाहर से हम कुछ इसको सप्लाई देते हैं क्या? नो सर. नो सर. नहीं सर. That means what? This is what? A passive component. जैसे आप एक ट्रांजिस्टर लो, ठीक है, सपोज. ट्रांजिस्टर का काम क्या है? अगर आप ये चीजें तो पढ़ चुके होंगे. एम्पलीफाई करना और स्विच की तरह काम करता, राइट? हाँ कि ना? यस सर. यस. Yes, sir. तो अभी उसको एम्पलीफायर और स्विच बनाने के लिए जब आप उसको, पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको बायस करना पड़ता है ना? बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस, फिर इसको रिवर्स बायस, ऐसा करके पहले इसको एक क्यू पॉइंट में सेट करेंगे. तब जब आप उसके पीछे सप्लाई दोगे तब उसका ये एम्पलीफिकेशन करेगा, राइट? दैट मीन्स
इसको अपना काम करने के लिए हम एक एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं, राइट? यस सर, समझ में आया बाबू? यस सर, कोई दिक्कत? नो No, सर, sir. एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं सर। Okay. So let us move forward. Okay. फटाफट चलते हैं. Now we'll discuss about the resistor, capacitor and inductor. फटाफट. Okay. So what is the resistor? सपोज करते सर करें Right. Okay. ऑब्स्ट्रकल्स इन फ्लो प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके से बोल सकते हो, समझना जरूरी है, ठीक है? ओके, तो एक लाइन में बोल Yes, सकते sir. हो, आधा लाइन में भी बोल सकते हो. ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द राइटर, दोज हु आर राइटिंग द बुक, डिफरेंट बिकॉज ऑफ सेम वो नहीं लिख सकता. ओके, वो कॉपी में आ जाएगा. Yes, sir. So we change the words and the meaning should be same. Okay, so obviously the properties of substance to resist the flow of current through it is called resistance. आप ऐसे ही बोल सकते हो, हाँ सर ये अपोज करता है करंट. ओके, बट ऑब्वियसली Yes. ये मटेरियल और सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज है. कोई भी आप ग्लास ले लो, वाटर ले लो, कहीं भी कुछ भी ले लो, है ना? तो जो चीज उसको अपोज कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस. ओके, रजिस्टर बोलेंगे हाँ, सर। ये प्रॉपर्टी होगा ना रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट कर रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे ना। सेम चीज है. रेजिस्टेंस या रजिस्टर सेम चीज है. ओके, ओके सर, रजिस्टर तो वो ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ना जो रेजिस्ट कर रहा है, और जो रुकने का प्रॉपर्टी है उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं ना सर। दोनों हाँ अलग हाँ हाँ, वही है. सेम है. यहाँ पे देखो, तुम चीजों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ओके, अगर तुम एक दूसरे को सेम नहीं बोल के चलोगे अभी, तो तुम उसको मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो उसके मटेरियल में, कौन आवाज कर रहा है? म्यूट कर लो बाबू, बोलते समय ऑन करो. मजहर अंसारी, what you are saying is correct. Okay, this is the property. Okay, ठीक है. सी क्या होता है जब आप, मैं अभी टाइम थोड़ा लग जाएगा, बट उधर चलते हैं, इधर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी, है ना, तो उसके तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है. ये कोई भी मटेरियल हो, उसका जानने का कोशिश करने का. एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कैसा वो बिहेव करता है जब वो इलेक्ट्रिकल सोर्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सामने आता है ना, उसके एटॉमिक लेवल और उसके वैलेंस, ये वो बैंड पे क्या इफेक्ट आ रहा है. दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस का क्या है, और एक क्या, बोलो, चुप हो गए. फिजिकल फिजिकल सर। एक है स्ट्रक्चर, वो किस स्ट्रक्चर में है. दैट मीन्स वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कि एमॉर्फस है. ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि उसका एटॉमिक का अरेंजमेंट कैसा है ना. इसके ही ऊपर पूरा सारा उसका क्या बोलते हैं, आप हिस्ट्री लिख सकते हो. या आपको कुछ बनाने का मन है, या कुछ आपको करने का मन है उस मटेरियल के साथ, तो आप आराम से उसके साथ खेल सकते हो. ओके, तो जो प्रॉपर्टीज की बात आ रही है यहाँ पे, ऑब्वियसली जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस. ओके, और उसका जो मेन, जो आप बोले, जो कंपोनेंट बन जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टर. ओके, ठीक है. और भी डिटेल में अभी Yes, sir. तो मटेरियल का पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो No, सर। No, sir. No, sir. Okay, so let us see the picture. Okay, and obviously
this is the analogy, okay, of water in the pipe. Okay, सेम चीज है, ठीक है ना? एक पाइप ले लो, इसके अंदर वाटर फ्लो करवाओ, एक फ्लेक्सिबल पाइप लो, है ना? उसके बाद दोनों साइड इसको क्या करो, थोड़ा प्रेस करो, पुश करो, एरिया घट जाएगा, राइट, नियर द, यस सर। दैट मीन्स व्हाट, अभी जो वाटर आराम से फ्लो हो रहा था वो क्या हो रहा है, इट इज फेसिंग सम रेजिस्टेंस, आराम से फ्लो नहीं होगा। ओके। और स्पीड से होगा। हाँ, तो obviously we are creating what in the water pipe, we are creating a resistance, यस सर। okay. हाँ सर। Same analogy Yes. if we relate with the electrical environment, okay, when there is a flow of current, if we put this, okay, कोई भी आप चीज लगा दोगे तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही। अगर आप सिंपल केबल भी जोड़ दोगे तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस हो, ऐसा नहीं है कि ऊपर आइडियल है, ओके। बट internally what we are doing, we are making some resistance using, है ना, some material, so that कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, ठीक है, ओके। सर मगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का? कंफ्यूज हो रहे हैं। इनवर्सली होता है। इनवर्स होता है सर। R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का ना? लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके सर, वही कंफ्यूज हो रहे थे सर। सी, इससे समझो ना, कंफ्यूज क्या होने का, ओके। नेक्स्ट, सो दिस इज द Okay, sir. रजिस्टर, पिक्टोरियल व्यू ऑफ द रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ओके, because in 40 minutes it's going to disconnect again, you have to connect, okay. So this is one type of resistor what you are seeing on the screen, okay. So this is the highlight, obviously temperature पे भी resistance की value depend करता है, okay. So all material have a resistance that is going to depend upon the cross sectional area and the temperature and the material type, okay, obviously rho, ठीक है। So resistor dissipate power in the form of heat, ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखना है, ओके। नेक्स्ट, so this is the construction, okay, the type of resistor what we are using in the circuit is three type basically: carbon, film and wire wounded, okay, ठीक है। ये कार्बन का मिक्सचर रहता है, उसके ऊपर ऐसे लेमिनेट कर देते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड करके दोनों तरफ से लीड निकाल देते हैं, ओके। सेम चीज है इसमें भी, एक ग्रूव रहता है, उसके ऊपर से रेजिस्टिव फिल्म को पहले डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल से इसको ढक देते हैं, ओके। सो इनसाइड ऑफ योर रजिस्टर, इफ आप तोड़ के वैसा आपको माइक्रोस्कोप से पूरा देखना होगा तब ये चीजें दिखेंगी, ठीक है ना। एक वायर बाउंडेड होता है, बहुत सारा वायर को ऐसे ऐसे करके रिंग टाइप का बना लिए और उसके ऊपर से इंसुलेटिंग मटेरियल डाल के आप डेडिकेटेड कितना ओम का रजिस्टर चाहिए आपका, ऐसा आप बना सकते हैं, ओके। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ हीट डिसिपेशन, ये डिपेंड करता है आप कहाँ कौन सा यूज करो, ठीक है। ओके, सेम टाइप का ये पिक्टोरियल व्यू आप देख लो, है ना। ये फिक्स्ड रजिस्टर एक होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ओके। सो वेरिएबल रजिस्टर को आप टेंसियोमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल है, ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है।
ओके सर दोनों में डिफरेंस क्या है लेंथ का? किसमें? फिक्स्ड और वेरिएबल में? फिक्स्ड मतलब क्या? सिंबल में सपोज सर। आप, हाँ फिक्स्ड मतलब क्या, देखो फिक्स्ड मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन है, ठीक। ओके, अभी जो भी ये फिक्स्ड वैल्यू है इसकी, सपोज ये 100 किलो ओम का है, ओके ठीक है। अभी यहाँ से कनेक्शन करोगे तो ये 100 ओम आएगा। बट अगर एक वेरिएबल है तो ऐसे क्या, एक बहुत बड़ा एक लेंथ रहता है, उसके ऊपर एक ऐसा स्लाइडर रहता है, ये स्लाइड कर करके नंबर ऑफ टर्न चेंज कर लेगा। ओके, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे मेजर करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, इसको और थोड़ा मूव करके यहाँ लेके चले जाओगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी। ओके, सम टाइम व्हाट यू नीड इन द सर्किट, क्या आपको उसको खोल तो नहीं सकते एक बार सोल्डरिंग हो गया तो, बट आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसकी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए रजिस्टर की। तो क्या करेंगे, नॉब से जस्ट घुमा देंगे, वैल्यू अलग हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? सर अगर फिक्स्ड रजिस्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो? थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए तो अभी जो डिजाइन हो रहा है, अभी जो हम बना रहे रजिस्टर या हमारे पास अवेलेबल है रजिस्टर, बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो टेम्परेचर चेंज को रजिस्ट करता है। ओके, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज 100 ओम है, लेकिन बहुत से ज्यादा आप जब बाई करने जाओगे ना तो उस पे टेम्परेचर का भी मार्किंग रहता है कि कितने रेंज तक ये सस्टेनेबल है, अदरवाइज ये मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दे। ओके सर हम्म, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, कहीं एटम्स के बीच में कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर रजिस्टर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर। टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जितना भी एटम है वो कोलाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस बेसिस पे कोलिजन आपस में होगा तो वो फ्लो आगे नहीं रेजिस्टेंस होगा। बढ़ेगा। हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर। ठीक है। अगर सर इसका रेजिस्टेंस, एज पे भी तो सर इसका एज पे भी तो डिपेंड करेगा ना सर, रजिस्टर का। ऑब्वियसली। तो मतलब पूछना क्या चाहते हो वो बताओ पहले। सर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है सर रेजिस्टेंस को, शायद ये पूछना था। हाँ जी, सर बोले ना कि फिक्स्ड रजिस्टर में उसका वन वैल्यू होता है, तो अगर उसका एज अगर रजिस्टर का बहुत ज्यादा काफी दिन का है नो तो नो नो उसका नो, तो हाँ वैल्यू हाँ, तो। वो सी 100 ओम का रजिस्टर है, अगर सर्किट में यूज हो रहा है, अगर 99.9 हो गया तो क्या हम इसको वेरिएबल बोलेंगे? If its value is changing in the own nature due to some aging effect or what you are calling is a temperature effect, टेम्परेचर इफेक्ट से अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर टेम्परेचर घटेगा वापस आ जाएगा ना अपने पोजीशन पे, तो इट्स नॉट वेरिएबल ना। वेरिएबल आई मीन टू से कि 100 ओम का एक रजिस्टर है, सपोज लगा के रखे हो, ये एक टोटल कैपेसिटी होता है। ओके, सपोज ये 10 ओम तक, 10 मेगा ओम तक आपके पास रेंज मिल जाए। जैसे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होता है ना, कि आप 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट एक ही सोर्स के साथ इतने वोल्टेज आप ले सकते हो। ओके, सेम काइंड ओके ऑफ सर। आप वेरिएबल रजिस्टर बना सकते हो, ऐसा होता है। गॉट माय पॉइंट? दो टाइप का रजिस्टर होता है, एक फिक्स्ड, मतलब आप बाजार से खरीदने जाओगे तब तो कोई उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, राइट। इफ यार आप इसको आग में ही डाल दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? काम करेगा ये? जल जाएगा सर। नो सर। अगर आप सर्किट में यूज कर रहे हो, किसी कारण से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, अगर और बढ़ जाएगा तो ये फट जाएगा, इसका कुछ मतलब सहने का कैपेसिटी होता है। आप देखो कभी रजिस्टर को फटते हुए?
सर रेसिस्टर तो नाइक्रोम भी है, फिर वो इतना गर्म हो जाता है हीटर इस समय, तो वो तो नहीं फटता ना सर। सब तो रजिस्टर है। अभी हम क्या बोले, वो एक हर एक तरह का मटेरियल एलो का है, हर एक, उसका अलग प्रॉपर्टी है सर। वही बात को समझो, समझ रहे हो बाबू, रेजिस्टेंस हर एक चीज में है कि नहीं? यस सर। तो अगर आप नाइक्रोम वाला तार कोई सर्किट में लगा देगा तो बाजू वाला तो जल ना जाएगा जी उसके साथ। उसको हम कहाँ यूज करेंगे ये बताओ। सबका अपना अपना अलग अलग जगह में यूज है सर। हाँ राइट, तो एक प्रॉपर्टीज है, ओके, रेजिस्टेंस, वो हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। इट्स नॉट अबाउट नाइक्रोम, इट्स नॉट अबाउट एनी कार्बन एंड एनी मेटल। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे सर इलेक्ट्रॉन जैसे होता है कि सर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं, है ना सर। तो सर इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम गूगल में एक बार सर्च किए तो वहां पर दिखता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड? यस सर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत कम है। मतलब तो मेरे दिमाग में ये आता है कि हम लोग को पावर सप्लाई अगर डीवीसी से मिलता होगा और मेरा घर जैसे 50 किलोमीटर का रेंज में है, वहां से पावर सप्लाई ऑन होता होगा तो आते आते तो हमको 2-3 दिन लग जाएगा। तो ये अच्छा हमको समझ नहीं आया था, ये अच्छा, क्वेश्चन तुमसे है हम मेरा एक, माइंड में हाँ नहीं कैसे। नहीं, हाँ तुमसे एक चीज पूछते हैं बाबू, पहले यस ये सर। चीज समझो कि अभी हम बोलते हैं कि एक तार में करंट फ्लो हो रहा है, यस सर। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा यस सर। यस सर। है ना, है ना? अभी तार काट दी यस तो सर। क्या सब इलेक्ट्रॉन बाहर गिर जाएगा? गिर जाना नो सर, चाहिए। इलेक्ट्रॉन काट, नो सर। काहे? क्यों? इलेक्ट्रॉन सर एटम में रहता है ना, इलेक्ट्रॉन हम्म, एटम में रहता है ना, एटम एटम से रहता है कैसे तो नहीं गिरेगा, गिरा, अभी तो एटम से फ्लो हो रहा था गिरे। ना, हैं? हाँ, अभी तो फ्लो हो रहा था ना। तो इस बेसिस पे तो सर करंट का डिफिनेशन ही रॉन्ग हो गया फिर। नहीं मतलब मेरे को जस्ट ये आंसर करो तो, क्यों नहीं गिरता? हाँ। जैसे मैं कह बोल रहा हूँ कि पानी, एक वाटर पाइप में पानी फ्लो हो रहा है। सी दिस इज यस सर। डिस्कशन ओनली टू मेक अ क्लियर कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स, यस सर। ओके? यस सर। तो अभी वाटर फ्लो हो रहा है, अभी पाइप काट दी तो क्या होता है? यस सर। पानी तो पानी वो नीचे बह जाएगा। हाँ, तो अभी मेरे को बताओ कि एटम या जो भी सब्सटेंस है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा सेल का इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट? फ्री इलेक्ट्रॉन सर, जो बाहरी क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं, बाहरी क्षेत्र का कहाँ, कौन सा सेल उसको बोलते हैं? सर जैसे वैलेंस सर सेल। सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा सोडियम एन प्लस, जो प्लस 281, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 कैपेबल है सर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। हाँ सर, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री That इलेक्ट्रॉन free सर। electron is present in the what we are calling in the electronics or electrical, ऑक्टेट में the conduction band. Okay, if your electron is free to move, that means that electron is present in the conduction band. Okay, यस सर। clear है? सर Conduction वो band सर, पर, बोलो। वो सर फ्री है कि मूव कर सकता है। हाँ इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाँ अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर डीवीसी से मूव करना स्टार्ट करता है और हाँ 100 किलोमीटर की रेंज में जाता है, तो वहां से अगर पावर सप्लाई ऑन होती है तो उसको आते आते तो सर 2-3 दिन लग जाएगा ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सर इलेक्ट्रॉन का स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड गूगल शो करता है, मैंने हम लोग जानते हैं, तो सर पावर सप्लाई होता है जहाँ प्लांट से, तो तुरंत कैसे आ जाता है, ये मेरा क्वेश्चन था। 1 सेंटीमीटर
पर सेकेंड। तुम कहाँ से ये डेटा देख लिया जी? रॉन्ग है भाई। और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करता। डेटा शायद डेटा रॉन्ग है सर। रॉन्ग नहीं है, गूगल कर लो तुम, विकिपीडिया में मिल जाएगा तुम। सर बाबू 1 मिलीमीटर पर सेकंड सर। हाँ 1 मिलीमीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें 10 टू द इलेक्ट्रॉन पावर कुछ नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रॉन travels at a speed of 1 centimeter, about 1 centimeter per second. This about as fast as an, लिखा है 1 सेंटीमीटर, गूगल में तो यही शो कर रहा है। चलो पहले तुम डिस्कस कर लो, फिर हम तुमको एक चीज बताते हैं। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अभी डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट करना, ठीक है? 5 या कितना 3 मिनट बच रहा है। अगेन ऑल ऑफ यू, ओके? अभी ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, इधर हम लोग भटक गए हैं। अभी देखो, ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा, ओके? आप एक पोटेंशियल अप्लाई किए, ठीक? अभी ड्यू टू दिस पोटेंशियल ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, ओके? ठीक है? अरे है, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आप जो ये बोला ना, जो उसका वेलोसिटी और ये वो, ओके? Yes, sir. लेकिन जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, वो क्या एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेगा? ये वाला इसके साथ कोलाइड करके अपना सारा एनर्जी इसको दे सकता है, ये फिर आगे वाले को दे देगा, फिर ये आगे वाले को दे देगा। ट्रैवलिंग इज नॉट लाइक कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पे जाके खत्म होकर फिर यहीं पे आ रहा है। यस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। हाँ सर। ये चीज मतलब सर हर बोलो। मतलब सर हर पॉइंट में हर जगह में कुछ पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन हर का। जगह में नहीं है बाबू, हर जगह में कैसे पोटेंशियल आ जाएगा? सर पोटेंशियल वो होता है सर, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी वन पॉइंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज। चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, माने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बैटरी नहीं, वैसे मत समझो, तुम और कंफ्यूज होगा फिर। सिंपल सा एक बैटरी लो, ठीक? अभी वो क्या बैटरी में इलेक्ट्रॉन बहुत है कि नहीं है, ये बताओ। है, लेकिन वो रेस्ट में स्टोर्ड है। स्टोर्ड है, ठीक? यस सर। अभी उसमें तार जोड़ेगा सपोज, तो वो जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है सर। है सर। अभी उसको बल्ब के साथ जोड़ दो, ठीक? तो वो जो बल्ब का जो तार है उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? है सर। है ना? हाँ सर। तो अभी ये बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा सर। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो सर, और सर्किट क्लोज रहेगा तो सर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, है ना? हाँ सर। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ लाइन में लगे हुए, यहाँ से कोई दिल्ली तक लाइन में लग गया, ठीक? मैं थोड़ा सा पुश करूंगा या थोड़ा सा मेरे में एनर्जी आएगी, ओके? तो
तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ, सपोज में हम लोग का स्पीड इतना है, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो? दैट मीन्स कि ये हम दिल्ली तो बहुत ज्यादा दूर का एग्जांपल ले लिए, क्योंकि इतना दूर तक जाने में ही हमारा